Hello everyone. Today I'm going to speak on a really pertinent issue which is part of almost all the discussions that are happening across the globe, and also the decisions that we take on day-to-day basis, whether individually or collectively as a society. So without wasting any time, I would like to name that issue. That issue is confirmation bias. Now what do I mean by confirmation bias? Confirmation bias essentially means whenever new information, facts, arguments or events come into our light, we tend to construe that piece of information by juxtaposing it with the previously held notion of ours. That essentially means जब भी कोई नई information हमारे सामने आती है, हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने प्री एग्जिस्टेंट बिलीफ सिस्टम के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे प्री एग्जिस्टेंट बिलीफ सिस्टम के साथ जाती है, हम उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे प्री एग्जिस्टेंट बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट जाती है, हम उस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करते हैं और अपोज करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द ट्रूथ इज। इसका सच से कोई लेना देना नहीं होता। द ओनली क्राइटेरिया इज वेदर द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट इज कमिंग इनटू अ लाइट इज कंप्लाइंग विद द प्री एग्जिस्टेंट बिलीफ सिस्टम और नॉट। सो दिस प्री एग्जिस्टेंट बिलीफ सिस्टम इज अ लेंस थ्रू व्हिच वी परसीव द वर्ल्ड and through which we filter every thought that comes in front of us. Now, how is this lens formed? How are these pre-existent belief system of ours is formed? In most of the cases, the initial stances that we take on anything becomes a pre-existent belief system. For example, मैं 2014 में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना शुरू करता हूँ. So in most of the cases, मैं नरेंद्र मोदी को एंड तक सपोर्ट करता रहूँगा, nonetheless whatever is happening in between. सिमिलरली अगर मैं 2014 से नरेंद्र मोदी को हेट करता हूं तो मैं एंड तक नरेंद्र मोदी को हेट करता रहूंगा, नो मैटर हाउ साउंड हिज डिसीजंस आर. Now look at all the discussions or debates happening across the globe. Whether it's a debate between BJP or Congress, whether it's a debate between Democrats and Republicans, or whether it's a debate between left or right. What in fact is happening in these debates? What are they trying to accomplish? Are they seeking for truth? No, they're not seeking for any kind of truth. They're just there to protect the initial stances that they have taken. Have you ever seen someone succumbing to the other person's argument, and especially on the national television? For example, two people are debating on something and one person suddenly starts agreeing with the other person's and he accepts the initial stance that he has taken could be wrong. It never happens. I totally understand that in some cases or for some people it's imperative to protect the initial stances. Like for example, I am a BJP spokesperson. I am bounded by not to speak against my party. Because if I do so, I might jeopardize my position in the party. And in some cases, I might lose the followers that I have attained by propagating or supporting a particular kind of ideology. However, हम लोगों का मेन कंसर्न यहाँ पे ये नहीं है कैसे कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होता है अपने इनिशियल स्टांस को प्रोटेक्ट करना. हम लोगों का मेजर कंसर्न ये है कि क्या जो डिबेट्स और डिसीजंस और डिस्कशंस हमारे अराउंड होते हैं, क्या हम उन डिबेट्स और डिस्कशंस के थ्रू ट्रुथ सीक करने की कोशिश करते हैं या नहीं. Confirmation bias में होता क्या है? Whenever a set of data is presented before us, we cherry pick it and interpret that data with our own accord. हम उस डेटा का वही पार्ट लेते हैं जो हमारे प्री एग्जिस्टेंट बिलीफ सिस्टम के साथ जाता है और बाकी पार्ट रिजेक्ट कर देते हैं irrelevant समझ के, और उस पार्ट के बारे में सोचते भी नहीं है. Let's take for example the recent political and economic formulations. For example, integration of Jammu and Kashmir with rest of India, or introduction of Citizenship Amendment Bill or NRC, or recent petrol price hikes. जो सपोर्टर्स हैं वो किसी भी तरह से सपोर्ट करेंगे इन डिसीजंस को, और जो हेटर्स हैं वो किसी भी तरह से नेगेट करेंगे. अगर मैं कैप की बात करता हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इट्स अ ह्यूज बिल जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. इट्स वेरी हार्ड टू कैटेगराइज इट इनटू ईदर बैड और गुड कैटेगरी, बट पीपल इजी डू दैट. दे जस्ट फोकस ऑन दैट पार्ट जो उनके एग्जिस्टेंट बिलीफ सिस्टम के साथ जाता है. एंड इट्स वेरी इजी टू पिन पॉइंट द आइडियोलॉजी दैट यू बिलोंग टू, बिकॉज आइडियोलॉजी स्पीक्स. अगर मैं इन तीनों इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉर्मुलेशंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसका ये मतलब है कि मैं मोदी का फैन, मैं मोदी का सपोर्टर हूँ या मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ. अगर मैं इन तीनों इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉर्मुलेशंस के अगेंस्ट जाता हूँ तो इसका ये मतलब है मैं मोदी का हेटर हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर केस में ऐसा होता है, बट मोस्ट केसेस में ऐसा होता है. People don't consider the efficacy of the decision. They don't consider the soundness of the decision. They only consider कि who is making this decision, rather than what the decision is. जो सपोर्टर है वो कुछ भी करके सपोर्ट करेंगे. जो मोदी का सपोर्टर है, अगर उसका डिसीजन गलत भी जाएगा, वो ये बोल सकते हैं कि डजंट मैटर, उसकी इंटेंशन अच्छी थी. या वो ये भी बोल सकते हैं कि यार मोदी खुद थोड़ी डिसीजन लेता है, वो तो एक्सपर्ट बोलते हैं. अरे ऐसा तो होता ही, एक्सपर्ट्स तो बोलते ही हैं. और जो हेटर्स है वो कुछ भी करके हेट करेंगे. अगर कोई डिसीजन अच्छा जाएगा मोदी का, वो बोलेंगे क्या हुआ अगर ये डिसीजन अच्छा था. इतना तो ड्यूटी होती ही है प्राइम मिनिस्टर की, बाकी डिसीजन तो खराब थे. अगर हमें लगता है कि बाकी सब फील्ड्स कंफर्मेशन बायस के विक्टिम नहीं है तो हम गलत हैं. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस, ये सब कंफर्मेशन बायस के बहुत बड़े विक्टिम हैं. So there is a concept in research methodology which is known as inductive reasoning, in which you tend to gather only that data that supports a conclusion that you already have in mind. अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो और आप ऑलरेडी एक कंक्लूजन दिमाग में बना चुके हो, आप उस कंक्लूजन तक रीच करने के लिए सिर्फ वही डेटा कंसिडर करेंगे जो आपके एग्जिस्टेंट बिलीफ सिस्टम या जो आपकी कंक्लूजन को सपोर्ट करे. एंड दिस रिसर्च विल बी कंप्लीटली वैलिड.
देयर विल बी नथिंग रॉन्ग दैट यू विल बी डूइंग प्रोसीजरली. आपकी ये रिसर्च पब्लिश भी हो जाएगी इवन दो आपकी इस रिसर्च में बहुत बड़ा बायस था. Let's make an analogy with a political scenario. Before doing that, let me introduce you with two more terminology, which are selective exposure and wishful thinking. Selective exposure essentially means when you expose yourself only to that information that supports the belief system of yours. For example, I am a hater of Narendra Modi. मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करूंगा. मैं फेसबुक पे सिर्फ वही ग्रुप ज्वाइन करूंगा जो नरेंद्र मोदी को हेट करते हैं. मैं मेरी गूगल पे सर्च भी बायस्ड होगी. मैं सिर्फ वो चीज सर्च करूंगा क्या नरेंद्र मोदी ने गलत किया. तो मेरी अल्टीमेटली मैं अपने आप को सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन के साथ एक्सपोज करूंगा जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रही है. और विशफुल थिंकिंग का क्या मतलब होता है कि जब मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करूंगा. अगर मुझे प्रूफ करना है कि मैं नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा सपोर्टर हूं और नरेंद्र मोदी ने सारे अच्छे काम करे हैं, तो सिर्फ मैं उसी डायरेक्शन में ब्रेनस्टॉर्म करूंगा कि मैं कैसे अपना पॉइंट प्रूफ कर पाऊं. There is another concept in psychology which is known as biased memory, in which you tend to recall only that data that supports the conclusion that you already have in mind. इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. इसमें साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली आप सिर्फ वही चीज रिकॉल कर पाते हैं. आपका ब्रेन वही चीज रिकॉल कर पाता है जो आपके कंक्लूजन को सपोर्ट करता है और बाकी डेटा याद भी नहीं आता. तो इट्स अ विशियस साइकिल कि जिसमें पहले आप इनिशियल स्टांस लेते हो फिर आपका ब्रेन भी आपका साथ छोड़ देता है. तो आप उस विशेष साइकिल में फंस के रह जाते हो. आप कुछ भी करके अपने इनिशियल स्टांस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो. So in 2004 US presidential elections, when John Kerry was a Democratic candidate and George W. Bush was a Republican candidate, so researchers took two set of people. One set was supporting John Kerry and one set was supporting George W. Bush. Both the groups were shown contrary statement made by the presidential candidates. और उन दोनों ग्रुप्स ने तब भी अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया. अगर मैं इसे इंडियन सिनेरियो से कंपेयर करूं, अगर मैं नरेंद्र मोदी की स्पीच में मैं राहुल गांधी का फेस लगा दूं तो जो राहुल गांधी के फैंस हैं वो उस स्पीच को सपोर्ट करेंगे और जो नरेंद्र मोदी के फैन है वो उस स्पीच को कैसे भी करके हेट करेंगे. सो इट डजंट मैटर व्हाट इज बीइंग स्पोकन, व्हाट मैटर्स इज हु इज स्पीकिंग. सो अल्टीमेटली वो जिस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, अगर बंदा वो बोल रहा है तो वो उसको सपोर्ट करेंगे. तो स्टेटमेंट क्या बोली जा रही है, डिसीजन क्या लिया जा रहा है, इट डजंट मैटर. कौन ले रहा है या किस आइडियोलॉजी के थ्रू वो डिसीजन आ रहा है, दैट मैटर्स द मोस्ट. जो हमारे साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होते हैं या सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज होती हैं, उनमें भी कंफर्मेशन बायस का बहुत बड़ा रोल होता है. हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज में रैंडम पैटर्न सीख करते हैं जिसमें कॉज और इफेक्ट का कोई रिलेशन नहीं होता. हम लोग बस किसी भी तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज प्लेसिबो इफेक्ट इन मेडिकल साइंस, इन विच हमें लगता है कुछ रैंडम एक्टिविटी करते हैं और उससे हम लोग फिजिकली सही हो जाते हैं या मेंटली सही हो जाते हैं. अगर हमें कोई बीमारी होती है वो हट जाती है. इनफैक्ट वो ऐसा होता भी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि मैं बॉटल का ढक्कन बार बार खोलूंगा तो मेरा बुखार चला जाएगा, ऐसा हो भी सकता. इनफैक्ट ऐसा हो भी सकता है अगर आप बॉटल का ढक्कन बार बार खोलोगे और अगर आपको ये बिलीफ है कि आप सही हो जाओगे तो आप हो भी सकते हो. पर अगर ऐसा होता भी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब कोई हमारे साथ क्रिटिकल डिजीज के हम विक्टिम होते हैं, अगर हम तब प्लेसिबो इफेक्ट में बिलीव कर पाए या अगर हम किसी ऐसी रैंडम एक्टिविटी में बिलीव करते हैं तो हम लोग जो हमें मेडिकेशन लेनी चाहिए, जो हमें स्ट्रिक्ट मेडिकेशन पे जो हमें लेनी चाहिए, हम उसे अवॉइड करते हैं और जिससे हम लोग टेम्परेली तो सही हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म उसके बहुत ही बुरे इफेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बहुत ही क्रिटिकल डिजीज से गो थ्रू कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे अभी से मेडिकेशन लेनी शुरू कर देनी चाहिए और प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से मैं कुछ रैंडमली ऐसी चीज कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे लग रहा है मैं सही हो रहा हूँ, उसकी वजह से परमानेंट मेडिकेशन अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बहुत ही बुरे इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म में मुझे फेस करने पड़ सकते हैं. अगर हमें लगता है कि हम कंफर्मेशन बायस को इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस के साथ बीट कर सकते हैं तो हम गलत हैं. Intelligent people use their defined logic to protect their initial stances, and it's very easy for them to mold the data in their own accord. For example, अगर एक इंटेलिजेंट आदमी के सामने कोई सेट ऑफ डेटा आता है, वो उस डेटा को अब किसी भी डायरेक्शन में इंटरप्रेट कर सकता है, जिस भी डायरेक्शन में उसका इंसेंटिव लाई करता हो या उसके बिलीफ सिस्टम लाई करता हो. तो इफ यू आर इंटेलिजेंट, दैट डजंट मीन यू वोंट बी अ विक्टिम टू दिस बायस. और अगर हमें लगता है कि एक्सपीरियंस कंफर्मेशन बायस से हमें बचा सकता है तो हम और भी गलत हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी सिंस पास्ट 40 years. इट्स वेरी मच पॉसिबल कि जो पहले साल में मेरा बिलीफ सिस्टम बना है, मैं बाकी 39 years उसी बिलीफ सिस्टम को प्रूव करने में लगा दूं. हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स पॉसिबल थ्रू सिलेक्टिव एक्सपोजर एंड विशफुल थिंकिंग. मैं 39 के 39 years सिर्फ अपने आप को उसी इंफॉर्मेशन से एक्सपोज करूंगा, उन्हीं लोगों के साथ एसोसिएट करूंगा जिससे मेरा पहले साल में जो बिलीफ सिस्टम बना है वो प्रूव हो सके. एंड विजुअल थिंकिंग के थ्रू कैसे होगा कि मैं पूरे 39 ईयर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, एक ही डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करूंगा कैसे मेरा बिलीफ सिस्टम प्रूव कर सकूंगा. पूरे के पूरे 39 ईयर्स बायस्ड हैं. तो डजंट मीन कि मैं एक आइडिया को 50 साल से सपोर्ट करता हूं, मैं उसके लिए इतना सारा एविडेंस गैदर कर रहा हूं, इसका ये मतलब है कि मैं सही सोच रहा हूं. इट कुड बी रियली बायस्ड और मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को अपोज कर रही है, मैं उस प्रोसेस में उस सब को इग्नोर कर दूंगा. तो दैट एसेंशियली मीन्स इट डजंट मैटर कि whether you have so much experience
कि आप उस आइडियोलॉजी को इतने साल से फॉलो कर रहे हो, और you're intelligent. You could be very well biased. But sometimes a rational mind could be a real big enemy of yours. For example, if I'm following a particular ideology since past 40 years, जो मैं already discuss कर चुका हूँ, now I started associating my life purpose with it. और मुझे 40 साल बाद ये रियलाइज होता है कि ये आइडियोलॉजी गलत है या ये बहुत सेंसलेस है, तो मैं अपना लाइफ का पर्पस खो सकता हूँ. तो इसलिए जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो ऑलरेडी एक ओपिनियन बनाए होते हैं, जो ऑलरेडी एक आइडियोलॉजी से अपने आप को एसोसिएट कर चुके होते हैं, तो इट्स बेटर टू लीव देम विद दोज आइडियाज एंड टू लीव देम विद दोज बिलीफ सिस्टम. ये सब बेकार है उनसे डिस्कस करना कि भगवान होते हैं या नहीं होते, तो उनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती. तो अल्टीमेटली फॉर देम it's rather better, they have spent most of their life. And if you want to change someone's opinion, if you want to erase this kind of a disease, it should be done early life, not in the end stage, because then it becomes really problematic, because you have made the whole system, your belief system, your habits, your decisions, your world, everything is being already made. It should be left untouched. It's rather be left untouched. Now the only way for us to fight with this logical disease is to be open-minded. I know the solution is really small and the problem is really big, but the only thing that we can do, we can check the premises that we already formed, the value system that we have already formed, and we need to check whether the premises that we already hold right now and whether the lens that we have constructed through which we try to perceive the world, is this lens biased, or are these premises, or could these premises be wrong? So we have to check it. If we are successful in doing that, we can combat this logical disease easily. Thank you.